So first we are going to discuss the directions of linear quantities. Direction of linear quantities. So when a particle is performing circular motion this way, ये circular track में है, its radius vector का direction. This is what the direction of radius. Linear at each point, linear displacement उधर ही होता है. मतलब suppose if it is moving this way, तो just draw a tangent at any point. Here if you have to find, draw a tangent. Here also draw a tangent. It shows the tangent which is drawn on that circular track. ये जो arc है उस पे हम एक tangent line draw करते हैं because at different point its linear displacement का direction is variable. यहाँ पे delta s ऐसा है, its direction is variable. So you have to draw a tangent to get the direction of linear displacement at each point. Linear displacement का direction is variable. जैसे जैसे उसका turn हो रहा है ना, radius vector turn हो रहा है तो delta s भी change हो रहा है. So on this circular path, if you have to find the direction of linear quantity, direction of linear displacement, just draw a tangent. वो जो tangent होगा वो show करेगा direction of linear displacement. This is the first term. Then linear velocity. So linear velocity हमारा क्या होता है? V is equal to delta s upon delta t. So v का डायरेक्शन और डेल्टा s का डायरेक्शन सेम रहेगा because delta t is a scalar quantity. तो ये तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं, तो v is in the direction of delta s. To find the velocity also, you just have to draw a tangent. So at any point, this is the circular path. If you have to find the direction of velocity, here draw a tangent. This is what the velocity. यहाँ पे velocity का डायरेक्शन ऐसा हो गया. Velocity का डायरेक्शन is variable at different point. तो to find the direction of linear velocity, just draw a tangent. वो किसी भी point पे. At this point, if you have to find the direction of velocity, just draw a tangent. At this point also, if you have to find the direction of linear velocity, draw a tangent. At different point, just एक tangent draw कर दो. वो tangent क्या show कर देगा? Velocity के direction को. Third, so this is what the linear displacement, linear velocity. Next term is linear acceleration. अब acceleration के केस में दो चीजें आ जाती हैं कि whether that particle is performing uniform circular motion या non uniform. जैसे मैंने पहले बताया कि अगर घड़ी की जो सुई होती है, जो घड़ी की सुई होती है, it performs uniform circular motion. So uniform circular motion में, if it is uniform circular motion like this, uniform circular motion, if a particle is performing uniform circular motion, जैसे हमारा घड़ी की जो सुई है, तो the clock hand is performing uniform circular motion, तो उसमें velocity का magnitude change नहीं होता. At each point velocity का magnitude is constant. तो see here, this is what velocity. तो in which case if force is acting, इसमें जो force act करता है, that force is acting towards the center. तो this force can change its direction but cannot change its magnitude. ये जो force का component v के direction में नहीं आ रहा है. If you are resolving this v, if you are trying to find the component of f, the effect of f in this direction, so they are perpendicular. So effect of f along v is 0. That's why this force cannot change the value of the velocity. So at each point, here velocity is like this, force is acting towards the center. At this point velocity is like this, force is acting towards the center. At this point velocity is like this, force is acting towards the center. So force in this uniform circular motion, force is always perpendicular to velocity. The force which is acting is perpendicular to velocity, and the direction of acceleration is same as direction of force because force is acting towards the center, so acceleration is same direction में. This acceleration is called radial acceleration. AR. Radial acceleration. Because it is acting towards the center, तो radial acceleration इसको because वो उसी radius वाली line पे है. There is radial acceleration जो radius के जैसा change होता जाएगा. जैसे इसका position change होगा. तो in this case, in uniform circular motion, this is the force which there is only one force which is acting towards the center, and this force cannot change the value of v. v के magnitude को नहीं change करता. It can just change its direction. So that's why यहाँ पे इसका डायरेक्शन बदलता है बट v की वैल्यू नहीं चेंज होती. पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. So in uniform circular motion only one force is acting, and that force is acting towards the center. That is called centripetal force also. The force which is acting towards the center. So यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? It is always perpendicular to v at each and every point. कहीं पे भी अगर सपोज यहाँ पे हम वेलोसिटी शो करते हैं तो एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर है. यहाँ पे अगर वेलोसिटी शो कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू दैट. Here if you are showing the velocity, acceleration is perpendicular to that. The direction in uniform circular motion, direction of acceleration is what? That acceleration is acting towards the center. It is always perpendicular to velocity. That's why this acceleration can change the cannot change the magnitude. It can just change the direction of v. ये जो acceleration है, it is because of change in direction of velocity.
लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में दोनों होता है मैग्नीट्यूड, वी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड एंड वी कैन चेंज द डायरेक्शन. सो हियर मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज वेरिएबल. Because of that variable direction, this acceleration is responsible. The acceleration which is acting towards the center, then the force which is acting towards the center, that force is responsible for change in the direction. But that force cannot change the value of v. ये जो सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है ना, this force is perpendicular to velocity. So that's why this force cannot change the value of v. इस force का impact इस v के along zero है. Because if you are trying to find the effect of this vector along this v, you will get zero effect. So this is about the uniform circular motion. If it is non-uniform, जैसे मैंने बताया फैन स्टार्ट करेंगे, जो घड़ी की सुई के केस में क्या होता है, घड़ी की जो सुई होती है वो इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. कॉपी करो इसको. इज डन. हो गया. Now, if it is performing non-uniform circular motion, so when a particle is performing non-uniform circular motion, जैसे फैन को हम स्टार्ट करते हैं तो फैन स्टार्टिंग में नॉन यूनिफॉर्म रहता है, बाद में वो यूनिफॉर्म होता है. तो एट द बिगिनिंग व्हेन इट इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म तो उसका दोनों चेंज होता है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन. सपोज इनिशियली वो 10 पे है, देन इट चेंजेस टू 20, चेंजेस टू 30, 40, 50 लाइक दिस. So its velocity की value is variable. ये जो हमारा v है, this is what v. Velocity की value is variable because there is non-uniform circular motion. तो यहाँ पे दोनों चेंज हो रहा है, velocity की value भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. Its direction is variable because there is a force which is acting towards the center, centripetal force, and its magnitude is variable because there is another force which is acting in the direction of velocity. Velocity का डायरेक्शन किधर है, tangential is what we. So उसके डायरेक्शन में भी एक फोर्स होता है, that force is tangential force. So in non-uniform circular motion, two forces are acting. The force which is acting towards the center and the force which is acting in the direction of velocity. This particle is circulating because of this force, the force which is acting towards the center. Because ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता. And the force which is acting in the direction of velocity, velocity के जो डायरेक्शन में, this force is responsible for चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. तो जब हम फैन को स्टार्ट करते हैं ना तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर, बिकॉज वो स्पीड अप होता जाता है. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर आर टू फोर्सेस, द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो ये जो रेडियल फोर्स इज अब सेम इसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स के डायरेक्शन में एक रेडियल एक्सेलरेशन आएगा और वेलोसिटी के डायरेक्शन में देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. So in case of non-uniform circular motion, there are two accelerations, radial acceleration and tangential acceleration. Radial acceleration is responsible for change in direction of the velocity. Tangential acceleration is responsible for change in magnitude. तो radial उसके direction को change करता है और tangential उसके magnitude को change करता है. तो at each point, जैसे यहाँ पे if you have to find the direction of velocity, तो उसी direction में tangential acceleration रहेगा. At this point, velocity, tangential. At any point, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, this is what velocity and in the same direction tangential acceleration is there. So at any point just draw a tangential line. वही जो tangential line होगा वो velocity को show करता है और tangential acceleration को. In non-uniform, uniform में तो ये होता ही नहीं, uniform में tangential acceleration 0 होता है. But in non-uniform circular motion, both the accelerations are there. Radial acceleration which is acting towards the center. अब radial is always perpendicular at each and every point. It is perpendicular only. This is what radial acceleration. So radial acceleration is responsible for change in direction of the velocity, and tangential acceleration is responsible for change in magnitude. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ रेडियल एक्सेलरेशन responsible for radial acceleration is responsible for change in direction of velocity. And tangential acceleration
Tangential acceleration is responsible for change in magnitude. For change in magnitude. So radial acceleration is responsible for change in direction of velocity and tangential acceleration is responsible for change in magnitude. तो tangential acceleration उसके magnitude को change करता है. जो tangential acceleration होगा वो v की वैल्यू को बढ़ा सकता है या mod of v को घटा सकता है. मतलब we are just taking the magnitude. तो tangential acceleration can increase the magnitude of the velocity or it can decrease the magnitude of the velocity. और radial केवल उसका डायरेक्शन को चेंज करेगा. क्लियर? चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इस वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर रहा. इसको नोट करो. तो जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं एट दैट टाइम, एट द बिगिनिंग फैन परफॉर्म्स, जो फैन के ब्लेड्स होते हैं वो ब्लेड्स परफॉर्म करते हैं नॉन यूनिफॉर्म साइड. वो स्पीड अप होते जाता है, उसका ओमेगा इंक्रीज करता है. तो वहां पे जो वेलोसिटी है उसकी दोनों मतलब उसका रोटेट तो कर ही रहा है, साथ में वो फास्ट भी हो रहा है. सो एट द बिगिनिंग इट परफॉर्म्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट बाद में वंस इट इज सैचुरेटेड वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे रोटेट कर रहा है, तो एट दैट टाइम इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो दिस अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ लीनियर क्वांटिटीज. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज. So linear displacement, just draw a tangent. Linear velocity, draw a tangent. In uniforms and linear acceleration. अब acceleration में आएंगे तो अब दो केसेस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म में एक ही एक्सेलरेशन है. हम ऐसा नहीं सोचेंगे यूनिफॉर्म में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं. यूनिफॉर्म में भी देयर इज अ रेडियल एक्सेलरेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. एंड व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन देयर आर टू एक्सेलरेशंस, रेडियल एंड टेंजेंशियल. रेडियल चेंजेस द डायरेक्शन and tangential changes the magnitude. These are the directions of linear quantities. Next, angular directions of angular quantity. Direction of angular quantity. So to find the direction of angular quantity, right hand thumb rule is used. Right hand screw law. Why right hand thumb rule is used? Because if you are writing this delta s is equal to what? Delta theta cross r. It is the cross product of two vectors. So whenever in cross product of two vectors, how to find the direction? By using right hand thumb rule या screw law. तो अब screw law हमारा क्या होता है? If it is clockwise, if you are rotating a screw in clockwise way, वो अंदर जाएगा inward direction में. And if it is rotating in anti-clockwise way, see here my fingers are turning in anti-clockwise way. तो जो thumb point कर रहा है that thumb is pointing in outward direction. And if my fingers are turning in clockwise way, then thumb is pointing in inward direction. अब इसमें हम देखते हैं तो डेल्टा एस और आर का, इन दोनों का डायरेक्शन हमको मालूम है. क्लियर? बिकॉज हम सर्कुलर ट्रैक में इसका डायरेक्शन हमको मालूम रहता है. सेम प्लेन, प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ. ये दोनों तो सर्कुलर पाथ के प्लेन में होते हैं. मतलब ये अगर सर्कुलर ट्रैक है, सो दिस इज व्हाट द रेडियस. ये बोर्ड में मैंने सर्कल बनाया हुआ है. ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है मैंने इस बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है. इसका रेडियस भी उसी बोर्ड पे है और डेल्टा एस भी सेम. दिस इज व्हाट डेल्टा एस. तो दीस टू आर इन द सेम प्लेन. रेडियस वेक्टर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही प्लेन पे है, इसी बोर्ड पे है. तो ये दोनों सेम प्लेन में है. तो ये जो होगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में थर्ड वेक्टर या तो आउटवर्ड आएगा या तो इनवर्ड जाएगा. तो ये जो डेल्टा थीटा रहता है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर आता है. प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ. The path in which the particle is performing circular motion, ये उसके परपेंडिकुलर जाएगा, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड. बिकॉज whenever you are taking cross product ना, दो वेक्टर सेम प्लेन में होते हैं. Say right hand, if you are using right hand thumb rule, तो two vectors are in the same plane. तो third vector जिसे हम वहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़े थे ना, P और Q है. If you are multiplying P with Q, P cross Q, तो जो रिजल्ट आता था, if it is anti-clockwise, result will come out, and if it is clockwise, result will come in. तो ये जो P और Q थे, these two are in the same plane. ये बोर्ड के प्लेन में थे, तो रिजल्ट उनके परपेंडिकुलर प्लेन में आता है. If two vectors are in the, when you are taking cross product, if two vectors are in the same plane, तो थर्ड वेक्टर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जाता है.
अब सी हियर, हमको ये मालूम है कि डेल्टा एस एंड आर दीज टू आर इन द सेम प्लेन, बिकॉज ये हमारा बोर्ड है जिसपे मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज व्हाट द रेडियस वेक्टर जो बोर्ड पे है. लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ऑन द सेम प्लेन. सो जो डेल्टा थीटा आएगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन आता है. तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ. अब जैसे इसको मैं ऐसे बना रहा हूं सर्कल दिस वे, मतलब सर्कल ऐसा है मैंने शो किया हुआ है, ऐसे में परपेंडिकुलर आई हैव टू शो लाइक दिस. तो इन दिस केस दिस इज व्हाट रेडियस एंड अ टेंजेंट इज ड्रॉन दैट इज डेल्टा एस. तो डेल्टा थीटा मतलब ये सर्कल समझो ऐसा है, ये मैंने इतना पतला सा सर्कल बनाया, इट इज लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट द रेडियस एंड दिस इज डेल्टा एस. टू वेक्टर्स आर लाइक दिस. ये हमारा जो ब्लू मार्कर है, दैट ब्लू मार्कर इज शोइंग द रेडियस एंड दिस ब्लैक मार्कर इज शोइंग द लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो जो डेल्टा थीटा आएगा दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो डेल्टा थीटा परपेंडिकुलर आता है, उस परपेंडिकुलर लाइन को मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं. डेल्टा थीटा मतलब समझो जो फैन रोटेट करता है ना, तो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो फैन के ब्लेड्स रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन को शो करेंगे, और फैन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लेड्स का जो टिप मतलब हेड पॉइंट है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा. और जिस रॉड में फैन अटैच्ड है, वो फैन जिस रॉड में घूम रहा है इस टाइप से, वो फैन हेलो हाँ. सो ये जो हमारा फैन होता है ना, इससे हमारा ब्लू मार्कर जो है फैन का ब्लेड है. दिस फैन इज रोटेटिंग लाइक दिस. ठीक है. तो जिस रॉड में फैन अटैच्ड होता है ना, वो रॉड एंगुलर क्वांटिटी के डायरेक्शन शो करता है. दैट इज परपेंडिकुलर टू द ब्लेड. ब्लेड जो होते हैं वो रेडियस वेक्टर शो कर रहे हैं, और जिस प्लेन में वो रोटेट कर रहे हैं दैट इज व्हाट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एट एनी पॉइंट यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट. तो फैन के जब ब्लेड्स घूमते रहते हैं तो उनके ब्लेड्स रेडियस हैं. जिस सर्कल में वो घूम रहे हैं किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन शो करेगा. और जिस रॉड में फैन अटैच्ड है, समझो ऐसा है फैन हमारा, ऐसे उसके ब्लेड्स हैं लाइक दिस. तो दिस इज व्हाट रेडियस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस, और ये जो होता है दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस रॉड में फैन अटैच्ड है. सपोज दिस इज द फैन, ये उसके ब्लेड्स क्या शो करेंगे, रेडियस के डायरेक्शन को. उस पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं दैट इज व्हाट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और जिस रॉड में फैन अटैच्ड है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा उस रेडियस और डेल्टा एस के परपेंडिकुलर आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया. मतलब समझो फैन का जो रॉड है, वो जिस रॉड में फैन अटैच्ड है, वो रॉड क्या शो कर रहा है, एंगुलर क्वांटिटी के डायरेक्शन को. अब सोचो जब फैन घूमता है, व्हेन दैट फैन इज रोटेटिंग, तो उनके रेडियस वेक्टर का ब्लेड्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. मतलब ऑल द लीनियर क्वांटिटीज आर वेरिएबल. जो कि रॉड का डायरेक्शन तो कांस्टेंट है ना, जो रॉड का डायरेक्शन दैट रॉड इज अलोंग वाई एक्सिस, तो वो नहीं चेंज होता. सो व्हेनेवर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जो उसके एंगुलर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता. इट इज लाइक दिस. ठीक है. पार्टिकल कहीं पे भी जाएगा, व्हेन दैट फैन इज रोटेटिंग ना, समझो फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन का जो रॉड है जिसमें वो फैन अटैच्ड है, दैट रॉड इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज, ऑल एंगुलर क्वांटिटीज, लीनियर मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ दैट फैन उनके ब्लेड्स का डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब रेडियस वेक्टर चेंज हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ऑल द क्वांटिटीज का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. लेकिन रॉड का डायरेक्शन तो कांस्टेंट है ना, और रॉड किसको शो करता है, एंगुलर क्वांटिटीज के डायरेक्शन को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो रॉड ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द फैन, रॉड का डायरेक्शन चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है वो हमेशा. क्लियर. तो व्हेनेवर अ पार्टिकल फॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका जो एंगुलर क्वांटिटीज होती है ना, वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी. जो फैन का रॉड है वही रॉड क्या शो कर रहा है, एंगुलर क्वांटिटी के डायरेक्शन को. तो डेल्टा थीटा भी सेम डायरेक्शन में, डेल्टा ओमेगा इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन. इसको कॉपी करो तो फिर मैं रखता हूं. क्लियर. हो गया. So this is what the angular displacement. Next, angular velocity. So see delta omega, omega is what? Delta theta by delta t. The delta theta is vector quantity. So omega is in the direction of delta theta only. Omega is in the direction of delta theta. ठीक है. तो सिंपल अगेन ये हमारा फैन है जो रोटेट कर रहा है, उसके ब्लेड्स का जो ब्लेड्स होंगे वो रेडियस को शो करेंगे, उसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट इज डेल्टा एस, और उसका जो रॉड है
जिस रॉड में फैन अटैच्ड है, दिस व्हाट डेल्टा थीटा और डेल्टा ओमेगा भी सेम डायरेक्शन में रहता है, दैट एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो वही जो फैन का रॉड है जिसमें फैन अटैच्ड है वो दोनों डेल्टा थीटा को भी वही शो करता है और ओमेगा को भी वही शो कर रहा है। थर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा का डायरेक्शन। अब अल्फा के केस में देयर आर टू केसेस, जब वो फैन की वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, ओमेगा के दो केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस व्हेन ओमेगा इंक्रीजेस, सेकंड केस व्हेन ओमेगा डिक्रीजेस। मतलब हमने फर्स्ट केस में जब फैन को ऑन किया है, तो जब भी फैन को ऑन करेंगे तो उसका ओमेगा वो स्पीड अप होता जाता है, उसका रोटेशनल वेलोसिटी इंक्रीज करता है। सो व्हेन ओमेगा इंक्रीजिंग डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव आएगा हमको, एंड व्हेन ओमेगा इज डिक्रीजिंग डेल्टा ओमेगा वी आर गोइंग टू गेट नेगेटिव। जब भी फैन को हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे ओमेगा इंक्रीज करता है, उसका रोटेशनल वेलोसिटी बढ़ते जाता है, वो फास्ट होते जाता है। सो ओमेगा इंक्रीजेस, तो जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज पॉजिटिव। जब हमने फैन को स्विच ऑफ कर दिया है, एट दैट टाइम ओमेगा डिक्रीजेस, व्हेन ओमेगा डिक्रीजेस डेल्टा ओमेगा इज नेगेटिव। तो यहां पे इन द फर्स्ट केस व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑन, एट दैट टाइम अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव है। और सेकंड केस में अल्फा क्या हो जाता है, नेगेटिव, जो फैन को स्लो डाउन कर रहा है, स्लो कर रहा है। तो इन द फर्स्ट केस जब हमने फैन को स्विच ऑन किया, उसका रोटेशनल स्पीड फास्ट होता है, उसके ब्लेड्स का रोटेशनल स्पीड फास्ट होता है, तो एट दैट टाइम अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। हमने फैन को स्विच ऑफ कर दिया, तो एट दैट टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में रहेगा, जैसे दिस वे, डेल्टा थीटा ओमेगा एंड अल्फा ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट केस जब भी फैन स्विच ऑफ कर दिया हमने, तो उस केस में क्या होगा कि वो इनिशियली दैट फैन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज वे, सपोज हमारा फैन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो स्विच ऑफ करेंगे तो भी क्लॉकवाइज घूमते घूमते ही रुकेगा, उसका डायरेक्शन मतलब थीटा का डायरेक्शन नहीं चेंज होता। फिर फैन को हमने ऑन किया, वो क्लॉकवाइज स्पीड अप हुआ, फिर हमने ऑफ कर दिया तो क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है, क्लॉकवाइज ही स्लो हो जाता है वो। तो ओमेगा का डायरेक्शन और थीटा का डायरेक्शन नहीं बदलता, वो ऐसा नहीं कि स्विच ऑफ करने को एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इफ इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज वे, तो स्विच ऑफ करेंगे तो वो क्लॉकवाइज घूमते घूमते ही रुक जाता है, मतलब थीटा का डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओमेगा इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ओनली अल्फा का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑफ। तो इफ इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज वे, व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑन, तो वो क्लॉकवाइज स्पीड अप होगा, तो अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में ओमेगा को सपोर्ट करा है, ओमेगा को इंक्रीज करा है। व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑफ, तो ओमेगा एंड थीटा का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, ओनली अल्फा का डायरेक्शन इज in opposite direction because it is de-acceleration, it is going to reduce the velocity of, it is going to decrease the angular velocity of that fan. So वो rod जो होता है, fan का जो rod होता है ना, that rod is going to show the direction of angular quantities. So during rotation of the fan, when that fan is performing circular motion, उसके angular quantities का direction नहीं बदलता। So during circular motion, linear quantities का direction सबका change होता है, linear radius का मतलब radius vector का direction is variable, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज वेरिएबल, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्शन, सारी क्वांटिटीज का डायरेक्शन वेरी करता है। लीनियर क्वांटिटीज का, एंगुलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन उस रॉड पे होता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता। क्लियर? सो नाउ यू अंडरस्टूड ना कि व्हाई इवन इफ देयर इज अ, even if particle is performing circular motion, omega का magnitude only you can change, you cannot change the direction of omega. Clear? If a particle is forming circular motion, so that the question, the doubt you asked ना कि even if that fan is performing circular या blades are performing circular motion, तो alpha because of change in direction भी आ सकता है। So alpha because of change in direction of omega नहीं आता, because omega का direction change ही नहीं होता। Clear? So omega alpha केवल क्या change कर सकता है, omega के magnitude को in circular motion, omega के direction को नहीं change करता, omega का direction even if it is performing circular motion, omega का direction is constant because it is in the direction of that rod of the fan. So angular quantities का we can change in a circular motion, angular quantities का we can change the magnitude only, we cannot change the direction because direction उनका एक ही होता है। वो linear quantities क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऐसा this way, तो here linear velocity is in this direction, here linear velocity is in this direction, here it is in this direction, linear velocity का direction is variable, but angular velocity तो सब में same है, omega is in the same direction only, either this particle is here, ऐसे जा रहा है, linear velocity का direction is variable at each point, even radius का direction, ऐसे radius का direction भी change हो रहा है, ठीक है, but no change in direction of omega, omega का direction नहीं change होता, वो तो fan के वो rod या perpendicular to plane है, यहाँ हमारा इस टाइप से
रोटेट कर रहा है, because it is rotating this way, ओमेगा का डायरेक्शन इज कांस्टेंट. So in circular motion what we can change? We can change the magnitude of omega. We cannot change the direction. Clear? ठीक है, इसको नोट किया. ठीक है. So again I am going to compare uniform and non-uniform. सिर्फ particle is forming uniform circular motion and non-uniform. Uniform, in case of uniform circular motion, this is what the radius का direction, its velocity, and only one acceleration is there, that is acting towards the center, radial acceleration. In non-uniform circular motion there are two accelerations. One acceleration is acting towards the center and other is acting in the direction of velocity, that is what tangential acceleration. So uniform circular motion में only one acceleration is there, that is acting towards the center, तो the radius केवल है. नॉन यूनिफॉर्म में रेडियस और टेंजेंशियल दोनों होते हैं. तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म v का केवल ओनली डायरेक्शन इज वेरिएबल, मतलब मॉड ऑफ v नहीं चेंज होता, मॉड ऑफ v कांस्टेंट रहता है. हाँ, v का डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन इज वेरिएबल. इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही चेंज होते हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है, इस वेरिएबल. यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है ही नहीं. टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इस मैग्नीट्यूड को चेंज करता है एंड इट्स डायरेक्शन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ रेडियल एक्सेलेरेशन. इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म magnitude is variable because of which acceleration? Tangential acceleration. Tangential acceleration can increase the velocity or it can decrease, or direction is variable because of radial. See, here what we can use, v is equal to r omega. यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं v is equal to r omega. ये क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा केवल. ओमेगा का जो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा का दोनों कांस्टेंट रहता है. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना तो ओमेगा का वैल्यू चेंज होता है ना तो डायरेक्शन. डायरेक्शन तो वैसे भी कभी नहीं चेंज होने वाला है, वो परपेंडिकुलर रहेगा इस वे में. तो मैग्नीट्यूड हम चेंज भी करेंगे तो भी डायरेक्शन, तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट रहता है, मतलब ओमेगा का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन. एंड इन दिस केस अल्फा इज जीरो, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है और अल्फा भी यहाँ पे जीरो रहता है. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं वहां पे और ना ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इन दिस केस एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू वी कैन चेंज बट वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन मैंने बताया फैन का जो रॉड होता है वही है डायरेक्शन. तो फैन के घूमने से उस रॉड का में कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, रॉड नहीं घूमता, तो रॉड का डायरेक्शन सेम है. तो ओमेगा का नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन. चेंज क्या होता है? केवल वैल्यू, बिकॉज दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? अल्फा रहेगा, तो अल्फा ओमेगा के वैल्यू को चेंज करता है. इज वेरिएबल ड्यू टू अल्फा. तो यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और अल्फा भी होता है. ऑल द थिंग्स आर देयर. So in uniform only radial acceleration is there, no tangential, no alpha. In non-uniform, radial हमेशा रहेगा. If it is circular motion, तो radial acceleration is always there. यहाँ पे tangential भी है, which is responsible for change in magnitude of the velocity, and alpha, angular acceleration, which is responsible for change in magnitude. ठीक है, इसको नोट करो. हो गया?
Is done? Okay. So angular acceleration, even if that particle is performing circular motion, angular acceleration cannot change the direction of omega. Clear? It can just change the magnitude. तो लीनियर क्वांटिटीज का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो सकता है, लेकिन एंगुलर क्वांटिटीज का केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। मतलब डेल्टा थीटा ओमेगा और अल्फा का डायरेक्ट ओमेगा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो चाहे फैन स्पीड अप हो या स्लो डाउन हो, ओमेगा का केवल वैल्यू बदलता है। जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं तो एट दैट टाइम ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करती है, v भी इंक्रीज करता है, लेकिन v में दोनों चेंज होते रहता है, मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होते रहता है और डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली चेंज ही हो रहा है बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सो लीनियर वेलोसिटी का दोनों इंक्रीज हो रहा है इन नॉन यूनिफॉर्म। जब हम फैन को ऑन करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है और डायरेक्शन इज आल्सो वेरिएबल। ओमेगा का when it is switched on, when that fan is switched on, तो omega increases because its rotational velocity increases, लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन नहीं बदलता बिकॉज वो डायरेक्शन वही रहता है जो फैन, जिस रॉड में फैन अटैच्ड है, दैट रॉड इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो फैन के घूमने से उस रॉड का डायरेक्शन वेरी नहीं करता। सो व्हेन इट इज नॉन यूनिफॉर्म, हमने फैन को ऑन किया, v इंक्रीज, लीनियर वेलोसिटी का दोनों चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। ओमेगा का केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वो फास्ट हो रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं सो एट दैट टाइम नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होगा कि वो फैन को स्लो डाउन कर, स्लो करेगा। जब भी फैन स्लो हो रहा है ना तो उस टाइम पे भी v का लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करे। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो वेरिएबल ही है, ओमेगा का केवल वैल्यू डिक्रीज करता है, ओमेगा का डायरेक्शन नहीं चेंज होता। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर क्वांटिटी बट इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी फिक्स्ड रहता है, वो परपेंडिकुलर टू प्लेन रहता है। तो सर्कुलर मूव करने से, सर्कुलर पाथ में मूव करने से ओमेगा का मतलब एंगुलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन नहीं बदलता, केवल उनका वैल्यू चेंज कर सकते हैं।